Yeah. So we've discussed income approach. Okay, we concluded yesterday the income approach and valuation. So next is the market approach. So what do you mean a market approach? So the market approach is where the valuation is done basis not the future benefits, not the future income, but the valuation is done basis what's the assessment of the market. For example, suppose suppose you have a property. Suppose you have additional property, and you are planning to sell that property. Suppose it's a flat, and uh, in the same building. Suppose your flat is at the fourth floor, and in your same building, somebody has sold sold his flat last week. So suppose, let's say, for the price of 1 crore. Now, for you, hello, am I audible? Yes. Okay. So for you, if you have to sell your property now, and last week, exactly same flat, same size, same view, everything same. It's just that your flat is on the fourth floor, and the flat that somebody else has sold was is on the fifth floor. That's the only difference. So, what will be the value of the property for you? It will start somewhere around 1 CR, because this is called a market approach, because you're not technically valuing that property, because you know that market has that level, or market has accepted that price recently, or that is the value that's going in the market. You use that value which is assessed by the market, and put the value on your asset, with some, of course, adjustment plus and minus. So let's assume if your flat is in a has much better interior decoration, vis-a-vis the flat that was sold at 1 CR last week. So what you will do, you will take 1 CR plus some few lakh rupees, and say, okay, for me, the value of the property would be 1 CR plus this. Because, and if somebody will ask you why, your most probably your answer would be that recently the flat was sold, similar flat was sold at 1 CR, and my flat is in a better has a better interior vis-a-vis that, so that's why 1 CR plus, suppose, 10 lakh rupees. Is that right? Is that exactly what you will do, or somebody would have different view on this? Okay, so in case no, this is called as market approach, where you are valuing something basis what's happening in the market, not basis the discounting or the forecast concept. So valuation, major similar company sold in the arm's length transaction represents a proxy for the specific company being valued. Same example, if the company is being sold at 1 CR, and you have a similar company, similar business model, similar size, then you will not sell that company less than 1 CR.
What's this arm's length transaction? Arm's length means it is not very far away. So for example, जैसे अभी हमने प्रॉपर्टी के एग्जांपल दिया. So now your flat is on the fourth floor. The flat that we're referring is on the fifth floor. So it's an arm's length, which means it's not your flat, right? It's somebody else's flat. So that value that you're linking is not exactly your property or your flat. It's an arm's length. It belongs to market. It belongs to third party, and it is proxy. So proxy means it is comparable. It is similar. So suppose if you compare your flat, let's say that is 2 BHK with the 4 BHK flat, and say okay, if the 4 BHK flat 1 CR का बिका तो मेरा भी 1 CR का हो गया. Then it is not a proxy. It is not a comparable property, a comparable flat. So you need to take a benchmark which is proxy, which is very similar, as similar as possible, and it should not be your own thing. It should be something which gives you fair assessment of the market. So real estate market ऐसे ही वर्क करता है, करेक्ट? रियल एस्टेट मार्केट में अगर आपके प्रॉपर्टी के आसपास किसी ने 1 CR कुछ बेचा है तो आप वो 1 CR को ही बेस बना देते हो. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज मार्केट अप्रोच. Now, this is relatively uh, easier model for calculation. अभी हम कैलकुलेशन करेंगे तो आपको पता लगेगा. ठीक है, this is not as complicated as it is DCF or other valuation model that we discussed in the last class. This method can only be used for the company which are listed company, which are traded companies. The company which is unlisted, this model doesn't work because unlisted company के लिए आप market price नहीं निकाल सकते. And again, the another constraint for this model, for this approach is this can only be used when you have recent comparable transaction, observable transaction. For example, if you want to sell a property and you somebody sold flat in your building assume 5 years back और उसके बाद किसी ने बेचा ही नहीं है, because nobody has sold the flat in last 5 years in your building. You can't use the price which was used 5 years back, right? Because things would have changed significantly after that. So अगर आप इसको ट्रांजैक्शन नहीं है कंपेयर करने का तो आप यूज नहीं कर पाओगे. This market approach is also called as relative valuation.
let's understand the concept. So PE, what is PE? PE is price upon EPS, earning per share. EPS is PAT divided by number of outstanding shares, assuming there is no preference available. Okay. So if PE is 5 means 5.1. What does this mean? If PE is 5.1, this means that EPS is 1 rupee, and when EPS is 1 rupee, the stock price is 5 rupees. सीधे से इसमें कोई डाउट है तो बताइए. No questions on this. So this means if EPS is 1, then stock price is 5. Which in turn means for 1 rupee EPS, market has given price of 5. Hence it is said that stock is trailing at a multiple of 5x. ऐसा बोला जाता है 5x. Any questions on this? सर ये ट्रेलिंग मींस क्या हुआ? ट्रेलिंग एट मल्टीपल 5 रुपीज के मल्टीपल पे है ना. 1 रुपए की अगर EPS है तो स्टॉक प्राइस वुड बी 5. सो ट्रेलिंग मींस 5 रुपीज के मल्टीपल पे ट्रेड हो रहा है.
फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके क्रेडिट कार्ड होते हैं, आपके क्रेडिट कार्ड पे अगर 100 रुपीज का स्वाइप करो तो आपको 1 पॉइंट मिलता है, लेट्स अज्यूम दैट। तो आपका जो रेशियो है वो 1:100 का है। फॉर एवरी 100 रुपीज स्वाइप यू गेट 1 पॉइंट। तो यहाँ पे ऐसा ही है, फॉर एवरी 1 रुपी ईपीएस यू गेट 5 प्राइस। अगर ट्रेलिंग में मुश्किल है तो इसको हटा देते हैं आप। इजी वर्ड देख लो, ट्रेडिंग एट मल्टीपल ऑफ 5। Any other question to this? So are we clear with PE? What do you mean by PE? Okay. Now तो suppose वे we are सॉरी, अगर एब्सोल्यूट वैल्यूज नहीं है तो भी ऑल्सो यूज द सेम फ्रेज, लाइक अगर डिनोमिनेटर में हम इसको शॉर्ट डाउन टू 1 तक करेंगे। ये मैं समझा नहीं, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है मतलब। लाइक इट इज 5/2। तो वो 2.5 5 1 हो जाएगा ना। हम्म। हमेशा डिनोमिनेटर में 1 तो आ ही जाएगा जब आप सॉल्व करोगे उसको। हाँ तो Even वही। decimal, that is okay. ओके, देन इट वुड बी 2.5, ट्रेडिंग एट 2.5x। Yes, at a multiple of 2.5x. ओके। What is the fluctuation frequency for this EPS? EPS It will fluctuation remain frequency. means EPS 5 ही रहेगा. To what extent it will remain 5 for a quarter, year, half yearly, or what? यहाँ पे EPS 5 नहीं है। Oh, sorry. Price upon EPS. So EPS is not 5 in this equation or in this example. The ratio of the market price of the share to the earning per share is 5. Yes. Will it remain same to what till what period? It will not, it doesn't change very frequently. It remains generally for a long run. It generally remains in a range. और if you believe कि आपको एंड इट्स नॉट पीई आप जो एक दिन का देख रहे हो, ठीक है, आप पीई जनरली एक रेंज का एवरेज देख रहे हो, 3 साल 4 साल की एक एवरेज रेंज का पीई देख रहे हो आपके। Anything else? Okay. So now suppose you're standing on 1st Jan 21. Okay. And forecasted EPS for 2021, which means by end of 2021, you're expecting EPS company to generate an EPS of 9 rupees per share. जहां तक क्लियर है?
₹9 का ईपीएस जनरेट करने का एक्सपेक्टेशन है। ये फोरकास्टिंग आपको सिखाया गया है, पीएनएल फोरकास्टिंग, पीएनएल बनाना सिखाया गया है। तो अगर मुझे फोरकास्टेड पीएनएल पर पैट मिल जाए तो उसको मैं नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दूंगा तो मेरा फोरकास्टेड ईपीएस आ जाएगा। ये ₹9 तक कोई डाउट है तो बताइए। ठीक है। नाउ if this company is following a PE of ₹5, let's assume this ₹5 PE is a average PE for a relatively decent period of time. Which what does that mean? This means for ₹1 EPS, the stock price is ₹5. Hence, what does this mean? By end of 2021, the stock price is expected to be stock price is expected to be 9 into ₹5, which is 45. हाँ, है ना। अगर ₹1 ईपीएस पे मार्केट 5 प्राइस देती है तो नेक्स्ट या इस ईयर के एंड तक ₹9 का ईपीएस एक्सपेक्टेड है, तो स्टॉक प्राइस वुड बी समवेयर अराउंड ₹45 बाय द एंड ऑफ द ईयर। Yes. किसी को डाउट है? दिस इज कॉल्ड एज मार्केट अप्रोच, दिस इज कॉल्ड एज रिलेटिव वैल्यूएशन। सिंपल है, बट आप जो पूरी वैल्यूएशन है मार्केट के भरोसे कर रहे हो। मार्केट ने जो बेंचमार्क दिया उसी से कंपैरिजन कर दिया आपने। कोई डाउट? इसको बोलते हैं टारगेट प्राइस। आप टारगेट कर रहे हो कि नेक्स्ट ईयर तक या इस ईयर के एंड तक ये पहुंच जाए, इतना पहुंच जाएगा टारगेट प्राइस। हाँ जी, कोई डाउट? लास्ट टाइम एनी डाउट? ओके, नाउ वी आर स्टैंडिंग हियर 1 January 2021। ये जो ₹45 का प्राइस निकला है, ये तो ये जीरो हो गया ना हमारे लिए। ये एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर का निकला है यहाँ पे, बट आपको तो इसकी आज की वैल्यू चाहिए, तो इसको मैं 1 साल पीछे डिस्काउंट करूंगा। तो 45 को 1 प्लस के ई के रेज टू पावर 1 कर दूंगा। So let's assume मेरा KE is, let's assume 12%. So if I do this 45 1 plus this ratio of 1, 40.17, which means the target price is 45, which means the stock is expected to reach at 45 at the end of the first year. But as per today, the value for me, the worth for me is 40.17. This is called as relative valuation model, market approach, market valuation. कोई भी नाम से आप बोल सकते। This is also called as PE valuation model. This is also called as valuation ratio. Any of these name, any of these tags that being used by different authors, different books, but ये सब यही है। सिंपल है, रिलेटिवली सिंपल है। कुछ पूछना है तो बताइए। दिस कंप्लीट्स द पीई वैल्यूएशन मॉडल।
No. Okay. Now the where do we use this model, and how do we decide whether we should use income approach, whether we should use market approach? There are few segments जहाँ पे market approach fixed है, जैसे property. जब आप प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, सेल करते हैं, जब आप प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, सेल का तो मैंने एग्जांपल आपको दिया. जब आप परचेज करते हैं, परचेज इज आल्सो डन बाय in a similar way that for each area, each location, there is a price that's been decided by the market. 100 rupees per square feet, 5,000 rupees per square feet. So 5,000 rupees per square feet given है आपको, और आपका एरिया जो है प्रॉपर्टी का, let's assume that is 1,000 square feet. So 1,000 square feet multiplied by 5,000 gives you the value of the property. You do not go and calculate whether it's a 5,000 rupees per square feet or not. You take that ratio, or you take that basis from the market and multiply with the size of the property, and that's it. That's the value of your property, plus minus adjustments that you do. So there are few sectors जहाँ पे ये fixed है कि यही use होगा, तो वो ही use होता है. Real estate is one of those. That is one. Second, जो income approach है, income approach is not a method that we can use if the income or the future benefits are negative. Our cash flows are negative. For example, if the company is into loss, the FCFF and FCFE might also come out to be negative. If the cash flows comes out to be negative, then I cannot use my income approach or my DCF valuation models. So if the cash flows are negative, I can't use income or DCF valuation model. Then I need another valuation model, which is market approach and relative valuation model. Any question? Hello. So are we good with this part? Any questions?
I was waiting because I was expecting a couple of questions, but nobody has raised those. So the first question is, if we discuss that, what if the EPS is negative? And EPS is possible to be negative. If your PAT comes out to be negative, then your EPS will also be negative, which means this PE multiple, price upon EPS, will also become negative. Then also in those situations, again, this model doesn't work for us, जो मैंने अभी आपको कराया. Agree? You're told if the cash flow is negative, then we should use this. If cash flow is negative, then surely this will also not help us. नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा मैं. दोनों अलग अलग चीजें. Cash flow negative and EPS negative are two different things. If cash flow is negative, Why? your FCFF, Why the cash flow is negative? बहुत सारे reasons हो सकते हैं. मान लो cash flow इसलिए negative. We have a negative PAT. That is one reason. अगर cash flow negative है because of negative PAT, तो EPS भी negative होगा. But it is not true always. Vice versa भी हो सकता है. Cash flow negative है तो जरूरी थोड़ा ना PAT negative ही होगा. PAT can be positive, still your cash flow can be negative. You can make in capital expenditures and all that. कुछ भी reasons, बहुत सारे reasons हो सकते हैं. So इसलिए मैंने बोला फर्स्ट सिनेरियो में अगर मेरा कैश फ्लो नेगेटिव है, ठीक है, be it whatever reason, if my cash flow is negative, I can't use FCFF and FCFE valuation model. Deepak, are you with me till this point? Yes, but anyhow, you have to see why it is negative. नहीं जरूरत है मुझे जरूरत नहीं है देखने की why. अगर वो नेगेटिव है तो मेरे काम का नहीं है, खत्म. करेक्ट. आप वो एनालिसिस के लिए देख लो, ठीक है, वो मैं मना नहीं कर रहा. व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू यू, अगर मुझे एफसीएफ और एफसीएफई मॉडल यूज करना है एंड माय कैश फ्लो जो मैंने कंप्यूट किया वो नेगेटिव आता है, तो आप ये पता भी लगा लो क्यों नेगेटिव है, आप वो मॉडल तो वैसे भी यूज नहीं कर पाओगे. करेक्ट. Yes. Now then I will say, okay, because my cash flow is negative, I can't use TCF. I have to go to other model. Then I come to market approach. अब अगर मेरा ईपीएस भी नेगेटिव है, और ईपीएस नेगेटिव कब हो सकता है, जब पैट नेगेटिव. अगर मेरा ईपीएस भी नेगेटिव है तो मैं ये पीई मॉडल भी यूज नहीं कर पाऊंगा. ये मैं समझा रहा हूं. दीपक, so far good? Yes, I'm listening. But this is important. Listen this carefully. But if my cash flow is negative, I will not be able to use DCF model. I will come to this model, which is PE or relative valuation. And if my PAT is positive, I still will be able to use PE model. Done? ये पॉइंट समझ में आया? दीपक, yes, no? अरे आपका कैश फ्लो नेगेटिव है बट आपका ईपीएस नेगेटिव नहीं है, तो ये पीई मॉडल हम यूज कर सकते हैं जो सिखाया जैसे आपको. This PE model will not work.
Example, Amazon, Flipkart, Snapdeal. So these were some of the companies an year back, a couple of years back, they were sitting into negative cash flows. We decided not to use DCF valuation model, but these companies were still sitting into negative PAT, which means we decided again not to use PE model as well. Last time, any questions in this one? Okay. So if the why EPS, still they have they are working since years with negative cash flow? yeah, हाँ तो What मैं is DCF नहीं यूज करता ना उनके लिए. no, my question was not that. My क्या question question? is why they are means through pumping money from cross border they are surviving. Till what extent? What is their business model? If standalone in India, taking the example of Amazon, you're saying that negative cash flow hai, they are pumping the money from cross border to sustain this. Till what time and why they are doing it? उसमें गलत क्या है? Means, If you start the business today, you are confident that this business will show profit in future. You continue to pump in money. That's the way every business works. so it is still in growth phase in India, Amazon. Of course. We are comparing Amazon India with whom? We are comparing Amazon India with Flipkart. That's not the way the Amazon analyze. That's not the way we did analysis when we did for Amazon. We compare Amazon India with Amazon US. Amazon US is 37 times of what Amazon India is. Okay. So it's not comparable. Okay. So Amazon India तो अभी बहुत it's like a baby. Okay. So there's no doubt नहीं मतलब their view is, their thought process is that Amazon India will become of a similar size and scale and a giant like Amazon US, because the markets have already shown those growth trajectories to them. So that's why they are pumping money. The investors are pumping money. These are not about these business cycles. So these investments are not for a period of 2 years, for a period of 3 years. These are looking at a time horizon of 20 years, 25 years. They're looking at that period. आप देख लो Amazon India में 5 साल पहले और आज में कितना difference है. Has that size grown? Yes. The size has grown up by more than 3 times. 4.5 years में कंपनी को 3 times increase हो जाना साइज में, 100% से ज्यादा ऊपर ग्रोथ की बात कर रहे हैं हम लोग. So because Amazon India is showing that result, has already shown that result, there's no ये तो एक्चुअल्स है ना. जब एक्चुअल सामने आ जाते हैं तो कोई डाउट ही नहीं है. So but we can't use PE model for Amazon, because Amazon sits into a negative cash. Sorry, because Amazon India sits in the negative cash flow. We can't use FCFF or FCFE or DCF for that matter, because Amazon India sits into losses. We can't use PE model as well. So for them, what we do, or for such companies, what we do, we use a revenue model, revenue valuation model. इसका मल्टीपल है प्राइस अपॉन सेल्स.
Now, if the price upon sales ratio is 2/1, same concept. That for 1 rupee sales, the stock price is 2 rupees. Any question? This P stands for profit or what? Sorry, Price. price. For 1 unit of sales, your price is twice. I didn't get this. Yeah, for 1 rupee sales, the stock price is 2 rupees. Stock price, basically. Okay. If a company has a negative cash flow, is not listed, Still, I will use we- this. Company has a negative cash flow, has nothing to do with this ratio or with this model. I'm not saying with this ratio. I'm saying that negative PAT comes out to gives an impact to negative cash flow, and it is not listed. Keep a negative PAT, negative cash flow, we have already ruled out, because this revenue model have no impact because of your negative profit or negative cash flow. Is that clear? प्राइस कैसे बढ़ेगा उसका? प्राइस को समझा रहा हूँ, पहले आप कैश फ्लो की बात करो. कैश फ्लो नेगेटिव है तो ही तो मैं ये वाला मॉडल छोड़ कर आया हूँ. So we are still back to the, we have again going back to the same point जो हमने अभी क्लोज किया. नहीं, it's अगर I'm मेरा stuck up cash there flow, only. हाँ रुक जाओ. अगर कैश फ्लो नेगेटिव है तो मैं FCFF, FCFE, DCF यूज नहीं करूंगा. यहाँ तक कोई डाउट है तो मुझे बताओ. आप बोल रहे हो आप यहाँ पे स्टक हो, क्या डाउट है यहाँ पे? मैं यूज नहीं करूंगा. नहीं करेंगे, कोई बात नहीं. हाँ, Now आप it is अगर पैट प्राइस रुको, कैसे इंक्रीज हो रहा है वो शेयर वो का? बता रहा हूँ. पहले मॉडल कंप्लीट कर लेते हैं. कौन सा मॉडल यूज नहीं करना है, कब, कैसे इंक्रीज हो रहा है, वो आप और मैं डिसाइड नहीं कर रहा हूँ, मार्केट डिसाइड कर रहा है. इसलिए ये मार्केट वैल्यूएशन मॉडल है. ठीक है. अगर मेरा पैट नेगेटिव है तो मैं पीई वैल्यूएशन मॉडल यूज नहीं करूंगा. ये क्लियर है? यस. अब इस वाले केस में मैं आपको बोल रहा हूँ प्राइस टू सेल्स रेशियो यूज करते हैं, जिसको रेवेन्यू मॉडल बोलते हैं. लेट्स यूज दिस. अब आपका क्वेश्चन है कि अगर ये कैश फ्लो नेगेटिव है, पैट नेगेटिव है, ठीक है, अभी लिस्टेड कंपनी को रहने दो. अनलिस्टेड कंपनी वाला क्वेश्चन अभी 2 मिनट बाद दोबारा लेता हूँ, तो उसको हटा दो. अगर कैश फ्लो नेगेटिव है, पैट नेगेटिव है, तो कंपनी का स्टॉक प्राइस कैसे बढ़ रहा है? करेक्ट. एक ये फर्स्ट पार्ट आपका क्वेश्चन का ये. यस. तो वो प्राइस मार्केट बढ़ा रही है, और मार्केट में कोई एक जना नहीं है. There are thousands or more than thousands buyers and sellers who believes they're happy to pay 2 rupees to this company stock price, even their cash flow is negative, for 1 rupee sales. If you believe market is not right, stay out of this. That's what the actual numbers that Marcus has given. Now you don't want to rely on the numbers given by the market, that's your call. मैं इसको फ्लिप करता हूँ.
सपोज दीपक तुम्हारे पास एक प्रॉपर्टी बेचनी है तुम्हारे को, लेट्स से प्रॉपर्टी का साइज 1000 रुपीज पर स्क्वायर फीट है, मैं ब्रोकर हूँ, आप मेरे पास आते हो, कहते हैं निशान मुझे प्रॉपर्टी इस लोकेशन में मुझे बेचनी है, क्या प्राइस चल रहा है? मैंने कहा दीपक इस एरिया में प्रॉपर्टी का प्राइस 5000 रुपये पर स्क्वायर फीट चल रहा है। ठीक है, आपने कहा ठीक है। आप ऐसे फजलूर के पास गए, ऐसे ऐसे आपने 50 ब्रोकर्स के पास चले गए और सबने आपको यही बोला कि उस एरिया में मार्केट का जो प्राइस चल रहा है 5000 रुपये पर स्क्वायर फीट के आसपास चल रहा है। तो दीपक आप क्या करोगे? आप अपनी प्रॉपर्टी के साइज को 5000 रुपये पर स्क्वायर फीट से मल्टीप्लाई करोगे, हाँ या ना? Yes, obviously. हाँ, वहां पे तो आप मार्केट ने जो 5000 रुपये दिए वो ले लिए ना आपने उसको चैलेंज तो नहीं किया ना, आपने अपना ड्यू डिलिजेंस कर लिया। rather than relying on one broker, you have reached out to 20 brokers or whatever, let's assume your friends and everybody who deals into that real estate, into that area or that location, आपने उनसे बेस्ट अपना ड्यू डिलिजेंस करके पता कर लिया और सबने यही बोला मार्केट का भाव यही चल रहा है। तो आपने वो मार्केट के भाव को चैलेंज नहीं किया, वो मार्केट के प्राइस को ले लिया और कैलकुलेशन स्टार्ट कर दी। यहाँ पे भी मैं वही कर रहा हूँ। जब मार्केट बोल रहा है कि 2 रुपए का प्राइस है 1 रुपए की सेल्स के लिए, चाहे कैश फ्लो नेगेटिव है पॉजिटिव है, मुझे लेना देना नहीं है। मार्केट ने 2 रुपए दिया, अगर मुझे ये वैल्यूएशन मॉडल यूज करना है सो आई विल रिलाई ऑन द मार्केट, एंड दैट इज लिमिटेशन ऑफ दिस मॉडल कि आप खुद कैलकुलेशन, आपके जो कैलकुलेशन का बेसिस है वो आप मार्केट से उठाते हो, इसलिए तो उसको मार्केट अप्रोच बोलते हैं। एंड इफ यू बिलीव कि वो बेसिस मार्केट पे फ्लॉड है तो आप मत करो ये मॉडल को यूज। बट आप दोनों नहीं ले पाओगे पोजीशन कि मैं तो ये मॉडल यूज भी करूंगा और जो मार्केट का नंबर है नेगेटिव कैसे आ गया पॉजिटिव कैसे आ गया, फिर ये थ्योरी वर्क नहीं करेगी। I'm not saying that. If you आप are वही बोल रहे हो ना omitting, कि वो नेगेटिव है तो स्टॉक प्राइस बढ़ कैसे गया? सेम क्वेश्चन ही तो है। मैं बोल रहा हूँ स्टॉक प्राइस कैसे बढ़ गया, वो मैंने नहीं बढ़ाया, आपने नहीं बढ़ाया, मार्केट ने बढ़ाया। तो मार्केट को लगता है the cash flow negative, PAT negative, blindly, without any reason, we should go for a revenue valuation model. You should not seek that why it is increasing. नहीं, मैंने ये नहीं बोला, मैंने आपको ये बोला, आपने पूछा कि अगर कैश फ्लो नेगेटिव है पैट नेगेटिव है तो स्टॉक प्राइस कैसे बढ़ गया? At least we should know the reason for that. वो इस वैल्यूएशन मॉडल का पार्ट नहीं है, मैं आपको यही समझा रहा हूँ, आप वो एनालिसिस कर लो। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो इस मॉडल की लिमिटेशन है, हाँ लिमिटेशन है। दिस मॉडल डजंट गो इनटू द डेप्थ जितना डीसीएफ और एफसीएफ ही जाता है, इसलिए तो मॉडल को यूज करना मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं है। मान लेते हैं आगे चलते हैं, चलो आपने एनालिसिस कर लिया, ठीक है, दीपक एनालिसिस करके वो क्या मिलेगा आप मुझे बताओ? आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ मार्केट सेंटिमेंट्स मिलेंगे। आप कंपनी की एनुअल रिपोर्ट देखोगे तो एनुअल रिपोर्ट में आपको दिखेगा कैश फ्लो नेगेटिव है, आपको उसके रिजल्ट्स में दिखेगा पैट नेगेटिव है, फिर आपको दिखेगा उसकी सेल्स बढ़ती जा रही है कंपनी की, तो सेल्स बढ़ती जा रही है बट कैश फ्लो नेगेटिव। अमेजॉन इंडिया यही तो है, टिपिकल एग्जांपल है अमेजॉन और फ्लिपकार्ट। सेल्स मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है, 3 टाइम्स 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रही है सेल्स, ठीक है, सेल्स बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है, ठीक है, बट अभी भी नेगेटिव में बैठे हैं प्रॉफिट के टर्म्स में, ठीक है, कुछ क्वार्टर्स में बीच में टच भी किया था बट मोटा मोटा एवरेज देखोगे तो नेगेटिव साइड पे ही चल रही है, ठीक है। तो आप मुझे बता दो उसका जो एक Amazon बिजनेस मॉडल है ना, उसका एक बिजनेस मॉडल है ना कि तो वो बिजनेस मॉडल तो they हर are किसी seeking, कंपनी का होगा। they are, नहीं वही मैं बोल रहा हूँ कि analysis will only limited to PAT and cash flows. In the market valuation model, the answer is yes. अगर आप किसी और मॉडल में चले जाते हो, एफसीएफएफ पे आ जाते हो, इनकम में आते हो, ऑफ कोर्स आई एम विद यू कि मैं क्यों बढ़ रहा है वो सब इंफॉर्मेशन को गैदर करना शुरू करूंगा। इसमें नहीं करूंगा, इसमें इसलिए नहीं करूंगा
क्योंकि वो इंफॉर्मेशन मार्केट ने ऑलरेडी असेस करके एब्जॉर्ब कर ली है, और मार्केट को एक जना नहीं चला रहा है, मार्केट को बहुत सारे लोग मिलके चला रहे हैं, तो वो असेसमेंट गलत नहीं होगा। दैट इज द एजम्पशन ऑफ दिस मॉडल। आप जो बोल रहे हो ना दीपक, मैं गलत नहीं बोल रहा उसको, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये मॉडल ऐसा बोलता है। ये जो रेवेन्यू जनरेशन मॉडल है, ये जो हम मार्केट अप्रोच कर रहे हैं, ये ऐसा। अच्छा चलो ठीक है, मैं आपको फिर से प्रॉपर्टी के एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लो आपने 5,000 रुपये पर स्क्वायर फीट कैलकुलेशन, आपने 20 ब्रोकर से चेक कर लिया, 5,000 रुपये पर स्क्वायर फीट है उस एरिया में, और आपकी प्रॉपर्टी जो साइज था वो आपका 1,000 स्क्वायर फीट था, ठीक है। और वहां पे जो आपको प्राइस मिला वो आपने 5,000 पर स्क्वायर फीट मिला, ठीक है। अब आपने क्या किया, आपने 1,000 इंटू 5,000 कर दिया, और वो प्रॉपर्टी का प्राइस मैं खरीदना है आपके पास, ठीक है। आपने मुझे ये प्राइस कोट किया। दीपक ऐसे ही करोगे यहाँ तक? यस। अब मैंने पूछा दीपक ये तो बहुत महंगा प्रॉपर्टी दे रहे हो आप, आपने कोई क्या रेट लगाया? आपने बोला निशांत मैंने 5,000 रुपये पर स्क्वायर फीट लगाया। मैंने चैलेंज कर दिया। दीपक अब आंसर करो, रियल लाइफ क्वेश्चन की तरह लेना इसको। आप एक प्रॉपर्टी बेच रहे हो, एक मैं बायर हूँ, आप सेलर हो, आपकी प्रॉपर्टी है। मैंने कहा दीपक 5,000 रुपये पर स्क्वायर फीट हो ना, इस ये इतनी, ये लोकेशन खराब है, यहाँ पे मेट्रो नहीं है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे वो है, ये है वो है, नेगेटिव है, ये सभी नेगेटिव फैक्टर्स है, ये कैसे प्राइस ले लिया आपने? क्या जवाब दोगे मुझे? Already answered that. Let's go to the market. The market price ये is मेरे को like आपसे this. सुनना है, आप बायर हो तो आप सेलर हो, आप क्या प्राइस आंसर दोगे एक पोटेंशियल बायर को It जो is, आपसे it is, मिलने? it is the same that, okay, the market trend is like that. यही आंसर दोगे आप क्या बोलोगे? ये एनालिसिस इररिलेवेंट है, ये नेगेटिव फैक्टर्स वगैरह सब कंसिडर, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है वो मार्केट ने कंसिडर करके 5,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के प्राइस पे ले आई है मार्केट, हाँ या ना? तो यानी जितने भी इश्यूज है पॉजिटिव नेगेटिव, वो मार्केट ने एब्जॉर्ब करके 5,000 रुपये का प्राइस ले दिया ना आपको, हाँ या Yes. ना? अब यही चीज कंपनी के लिए भी मैं बोल रहा हूँ, और यही मैं आपको इससे पहले बता रहा था कि जितनी भी कंपनी पॉजिटिव्स हैं या प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम्स मीन नेगेटिव कैश फ्लो, नेगेटिव पैट, और पॉजिटिव ये सेल्स, जो भी पॉजिटिव है, सेल्स मैनेजमेंट अच्छा है, उनका बिजनेस का उनका एक्सपीरियंस है, जो भी है, जो भी उनका पॉजिटिव्स है, इन सब पॉजिटिव्स नेगेटिव्स को कंसिडर कर लिया है मार्केट ने, और इसलिए 1 रुपए की सेल्स पे उसको 2 रुपए के प्राइस पे बिठा दिया। तो मैं दोबारा ड्रिल डाउन करने से कुछ नहीं होने वाला अभी। This is the way this valuation model works. अब कोई डाउट है तो बताओ। I think in that case, this is the most least preferred approach. बट आप भी ऐसे यूज करोगे जब आप प्रॉपर्टी बेचोगे ना, ये बोलने में सही, जो आप बोल रहे हो ना लीस्ट प्रेफर्ड अप्रोच, एग्री विद यू, देयर इज नो डिनायल टू दिस, बट प्रैक्टिकली ऐसे वर्क नहीं होती ना। प्रैक्टिकली ऐसे यूज करोगे आप भी, जब आप अपनी प्रॉपर्टी बेच रहे हो ना, सेल करते वक्त अगर आपको ब्रोकर ने बोल दिया कि 5,000 रुपये पर स्क्वायर फीट है, आप किसी भी हालत में प्रॉपर्टी को 5,000 रुपये पर स्क्वायर फीट से नीचे नहीं बेचोगे। बेचोगे दीपक? No. अगर आपको कैश की अर्जेंसी है, वो सब चीजें छोड़ दो, नॉर्मल सिनेरियो, आप एक इन्वेस्टर की तरह आपने प्रॉपर्टी खरीदी और आपको इमीडिएट कोई कैश की अर्जेंसी नहीं, कोई इमरजेंसी नहीं है, तो आप उस प्रॉपर्टी को कभी भी 5,000 रुपये स्क्वायर फीट से नीचे नहीं बेचोगे। अगर आपको 50 ब्रोकर ने बोल दिया है दीपक इस एरिया में प्राइस पर 5,000 रुपये स्क्वायर फीट चल रहा है, आप कभी भी ये नहीं करोगे दीपक कि उस ब्रोकर को, 50 ब्रोकर को बोलोगे नहीं मैं तुम्हारी बात पर नहीं मानता, मैं तो खुद कैलकुलेशन करूंगा यहाँ बैठ के, और आप खुद अपना एक कैलकुलेशन बनाते हो कि अच्छा ये है, इस एरिया का लोकेशन ये है, इस एरिया में ये डेवलपमेंट होने वाला, इस एरिया में ये होने वाला, इस एरिया में होने वाला, और मैथमेटिक्स करके 5,000 रुपए के नंबर पे आते हो। ऐसा कोई नहीं करता। अगर बायर, आप सेलर हो, तो आप जो नंबर आपको मार्केट ने दे दिया है, आप उस नंबर को मिनिमम बेंचमार्क बना देते हो। हाँ, आप ये बोल सकते हो कि भैया मेरे प्रॉपर्टी तो
प्राइम लोकेशन उस एरिया के भी बेस्ट स्पॉट पे है, तो 5,000 पर स्क्वायर फीट है, मैं तो 5100 पर 100 रुपीज पर स्क्वायर फीट पे बेचूंगा, दैट इज ओके। आप उसमें प्रीमियम बढ़ा सकते हो, बट आप उसको कम नहीं लेके जाओगे। तो जब आप करोगे नहीं वैसा, तो अभी आपने बोला लीस्ट प्रेफर्ड मॉडल है, पर प्रैक्टिकली यही यूज होता है। सो मैंने भी आपको क्या बोला, ये मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं होगी। मेरी फर्स्ट, मैं इसी ऑर्डर में चलता हूँ, मैं इस ऑर्डर में चलता हूँ। मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस हमेशा रहती है एफसीएफएफ के लिए, या एफसीएफई के लिए, या डीसीएफ के लिए। और अगर मेरे कैश फ्लोज नेगेटिव है तो मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, ये मेरे लिए रूल आउट हो गया। फिर मैं आता हूँ यहाँ पे, अगर मेरा पैट पॉजिटिव है तो मैं इसी पे यहाँ से लेके आगे बढ़ जाता हूँ। बट अगर ये भी नेगेटिव है, लाइक एन अमेजॉन, तो मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, मुझे इस मॉडल पे आना ही पड़ता है। दीपक, कोई डाउट? यही रीजन है, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, कितना लॉस में बैठे हैं ये लोग, नेगेटिव कैश, तब भी इनकी कंपनी की वैल्यूएशन कहाँ पर बैठी है? इतनी हाई वैल्यूएशन कहाँ से आ रही है? वो कहाँ से आ रही है? वो सेल्स से आ रही है, क्योंकि इनकी वैल्यूएशन हमने रेवेन्यू बेस्ड मॉडल से करी हुई है। जैसे जैसे इनकी सेल्स बढ़ती जाएगी, इन कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ती जाएगी, क्योंकि इनकी वैल्यूएशन प्रॉफिट से लिंक ही नहीं करी गई है। लास्ट टाइम, दीपक, एनी क्वेश्चंस इन दिस? No. Anybody else, any other question? So what does this mean? तो सेम कैलकुलेशन को लेकर चलते हैं। If the company price to sales ratio is 2/1 and the forecasted sales by end of 2021 is 100 rupees, then company का stock price is expected to be 200 by end of 2021. And that becomes my target price. This is the way this revenue valuation model works, or the price to sales ratio valuation model work. नाम से ज्यादा कंफ्यूज मत होना, क्योंकि बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट लिंगो नाम अटैच करे जाते हैं to make it more attractive, particularly from a publication perspective, from an author perspective. But प्रिंसिपली आज खोल के उसको देखेंगे तो यही चीज मिलेगी आपको। सर ये जो पीएस है, एमपीएस डिवाइडेड बाय सेल्स, तो ये एक्सपेक्टेड वाला होगा। प्राइस टू सेल्स रेशियो वो आज का रेशियो है, करंट एवरेज। जो सेल्स है वो फोरकास्टेड। नहीं समझा सर। प्राइस टू सेल्स आज का रेशियो, मैंने ये क्वेश्चन था ना, ये आज का ही फोरकास्टेड है, आज का। यस सर। और ये जो फोरकास्टेड सेल्स जो है ये क्यों निकाला है? ये 2/1 का क्या मतलब है फजलूर? हम्म,
Yes, what do you mean by this 2 by 1? We just discussed. ₹2 के शेयर्स को ₹1 में सेल किया जा रहा है। ये तो मतलब नहीं है इसका। दिस मीन्स 1 rupee सेल्स के ऊपर, फॉर 1 rupee सेल्स स्टॉक प्राइस इज 2 rupees. सो अब मुझे अगर ये निकालना है कि बाय एंड ऑफ 2021 स्टॉक प्राइस कितना होगा, तो उसकी फोरकास्टेड सेल्स तो पता होनी चाहिए ना मुझे। अगर मुझे पता है कि नेक्स्ट ईयर मेरी सेल 100 रुपए होने वाली है, तो नेक्स्ट ईयर मेरा स्टॉक प्राइस कितना होने हो जाएगा। जब 1 रुपए की सेल्स पे 2 रुपए का प्राइस है, तो 100 रुपए की सेल्स पे कितना स्टॉक प्राइस हो जाएगा? 200 स्टॉक प्राइस हो जाएगा। यस सर। इसलिए फोरकास्टेड सेल्स निकाला। इसको भी टारगेट प्राइस बोल सकते हैं और खाली हाँ हाँ, टारगेट प्राइस ही बोलते हैं ना इसको। जब भी आप ऐसा प्राइस निकालते हो कि अगले साल इतना स्टॉक प्राइस हो जाएगा, तो वो टारगेट ही तो निकाल रहे हो ना। वो आज आप प्रेजेंट वैल्यू नहीं निकाल रहे पारोगे। तो प्रेजेंट वैल्यू तो हम उसको डिस्काउंट करके इंटेंसिव वैल्यू निकालते हैं, बट जो फ्यूचर का प्राइस दे रखा होता है उसको टारगेट प्राइस बोलते हैं। तो उसके साथ मेथड मेंशन होता है कि बेस व्हाट वी हैव टेकन द बेस। मेथड मेंशन होता है मतलब? अच्छा अच्छा, हम तो कैलकुलेट कर रहे हैं। ओके एनी अदर क्वेश्चंस वी हैव डन अंडर मार्केट अप्रोच? मैंने आपको 2 मॉडल्स कराए हैं, एक पी मॉडल, एक P2 सेल्स मॉडल। विदाउट और इसको भी डिस्काउंट करेंगे एज पर प्रेजेंट वैल्यू। okay. Now both of these are giving you price of the equity. So the price upon EPS, which is PE, and price upon sales, both the P is the price of the equity. Okay. Now let's look at the other model, जिसका नाम है enterprise value upon EBITDA. ठीक है, थर्ड है ये। Now, so what does enterprise value upon EBITDA means? एंटरप्राइज वैल्यू का मतलब होता है पूरी फर्म की वैल्यू, नॉट इक्विटी। पूरे फर्म की वैल्यू, जो एफसीएफएफ फ्री कैश फ्लो टू फर्म, एफसीएफएफ को करने के बाद, सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आती है उसको एंटरप्राइज वैल्यू बोलते हैं, क्योंकि पूरे फर्म की वैल्यू आती है। इसमें किसी को डाउट एंटरप्राइज वैल्यू क्या होती है? एंटरप्राइज वैल्यू इज डिफरेंट फ्रॉम इक्विटी की वैल्यू। इक्विटी इज ओनली इक्विटी की वैल्यू, एंटरप्राइज वैल्यू इज नॉट ओनली इक्विटी, पूरे फर्म की वैल्यू। ठीक है, जैसे मैंने आपको डीसीएफ में या इनकम अप्रोच में
इक्विटी की वैल्यू निकालने के लिए अलग कॉन्सेप्ट कराए थे, फर्म की वैल्यू निकालने के लिए अलग, FCFE and FCFF. Similarly, under market approach, again you have two categories. If you want to calculate the equity का price or equity की valuation, then you have PE and price to sales. ये दो models available है. But अगर आपको firm की value निकालना है, then you do not use PE or price to sales. You use enterprise value upon EBITDA. So let's see. If enterprise value upon EBITDA is, let's assume, 5/1. What does that mean? This means for every 1 rupee EBITDA of the company, the enterprise value or the value of the firm is 5 rupees. Sorry, यहाँ पे होना चाहिए. Any questions so far? Okay. So if I say, One go ahead. share. Yeah, If share है ही नहीं. It's not a share. There's no concept of share in this model. it's one EBITDA is corresponds to 5 EV. Yes. If there is the value of EBITDA is, for example, 1 CR, then it will be 5 CR is the enterprise value. Correct. That is what it means. The enterprise value is at a multiple of 5x for EBITDA. जो भी EBITDA होगा उसके 5x पे वैल्यू हो जाएगी फर्म की. और I repeat, I am saying value of the firm, not the value of equity. तो ये स्टॉक प्राइस वैल्यूएशन नहीं सिखा रहा हूँ आपको मैं, अभी एंटरप्राइज वैल्यूएशन सिखा रहा हूँ जो M&A में हम लोग यूज करते हैं. तो हम M&A करते हैं तब हम FCFF और एंटरप्राइज वैल्यू यूज करते हैं, बिकॉज M&A में हम पूरी फर्म को एक्वायर कर रहे होते हैं. So by end of the 2021, suppose if forecasted EBITDA is 20 rupees, then enterprise value is expected to be by end of 2021 would be 5 into 20, 100 rupees. But this is the value that you're expecting or you're targeting to be there at the end of 2020 when you're starting at the beginning of the 2020. तो ये एक साल बाद आप एक्सपेक्ट कर रहे हो एंटरप्राइज वैल्यू इस टारगेट पर टच कर जाएगी. In case you need present value, then discount. The important thing is now you will discount with WACC, not cost of equity. ये मैं पहले सिखा चुका हूँ कि जब भी enterprise value या value of the firm आती है, discounting has to be at WACC, not cost of equity. बाकी सब कुछ सेम. Any doubt in enterprise value EBITDA model? How this EV upon EBITDA has been evaluated?
Is this good? I think we have lost you. And we had a question that from where this EV upon EBITDA came, this ratio. ऐसा तो नहीं होगा सीधा सीधा आपको दे रखा होगा ये? हाँ, दे रखा होगा ये। अच्छा ठीक है, अगर दे रखा हो तो कोई डाउट है तो पहले उसको सॉल्व कर लो, फिर मैं अगर दे नहीं रखा तो निकालते कैसे वो भी बता दूंगा, बट अगर दे रखा है तो हो जाएगा। यस, इसमें किसी को डाउट? इफ एंटरप्राइज वैल्यू अपॉन, ये फोरकास्टेड नहीं है दीपक, ये आज का है, तो मुझे सिर्फ आपको इतना बताना है कि बैलेंस शीट, पीएनएल या आपके एनुअल रिपोर्ट से वैल्यू कहाँ से मिलेगी, वो मैं बता देता हूँ। इट्स नॉट फोरकास्टेड एंटरप्राइज वैल्यू अपॉन एबिटा। एंटरप्राइज वैल्यू एबिटा प्रेजेंट टू पास्ट का डेटा ही है, ये होता है एनुअल रिपोर्ट में अंदर आपके, तो वो मैं बता देता हूँ। बट अगर दे रखा है ये नंबर, तो इस कैलकुलेशन में या इस वैल्यूएशन मॉडल में किसी को कोई डाउट, एंड उसके बाद फिर मैं बताता हूँ ये निकालते कैसे, ये कहाँ मिलता है। फर्स्ट क्वेश्चन में किसी को इशू है कि अगर ये दे रखा है तो ये जो कैलकुलेशन है, ये जो कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ डाउट है तो बताइए। हम प्रेजेंट वैल्यू इसका क्यों निकालें? मत निकालो। अगर आपको आज, देखो दो चीजें है इसमें, एक आपको अगर इतना जानना है कि एक साल के बाद या एंड ऑफ बाय एंड ऑफ द 2021 इस फर्म की वैल्यू क्या होगी, इफ दिस इज व्हाट यू वांट टू कैलकुलेट, देन डोंट डिस्काउंट, बिकॉज वो 100 रुपए होगी। बट तुम्हें ये जानना है कि 100 रुपए तो एक साल के बाद होगी, बट मैं कंपनी को आज एक्वायर कर रहा हूँ तो आज की क्या वैल्यू होनी चाहिए, तो डिस्काउंट नहीं करेंगे। यस सर। तो अब वो डिपेंड करता है आपको निकालना है कि अगर आपको ये निकालना है कि एक साल के बाद फर्म की क्या वैल्यू होगी, तो टारगेट प्राइस पर निकाल के छोड़ दो। बट अगर आपको उसकी आज की प्रेजेंट वैल्यू जाननी है तो डिस्काउंटिंग करनी पड़ेगी। बट एंटरप्राइज वैल्यू की अगर डिस्काउंटिंग करोगे तो वैक पे करोगे, ये कहीं पे नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट पीस है, क्योंकि जो ऊपर मैंने दो मॉडल आपको बताए, पीई और प्राइस टू सेल्स, उसमें अगर डिस्काउंटिंग करते हो तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी पे होती है, केई पे होती है, ध्यान रखना ये वाला पॉइंट। पीई और पीएस जो है वो एफसीएफई के स्टेट पर है वो। या करेक्ट, वो इक्विटी की, वो जैसे एफसीएफई से इक्विटी की वैल्यू निकलती है, ऐसे ही पीई और प्राइस टू सेल से इक्विटी की वैल्यू निकलती है। फिर जैसे एफसीएफएफ से फर्म की वैल्यू निकलती है, वैसे एंटरप्राइज वैल्यू अपॉन एबिटा से फर्म की वैल्यू निकलती है। और ये सर जो एंड ऑफ द 2021 में फोरकास्टेड एबिटा जो दिया रहता है, ये गिवन रहता है या फिर इसको निकालना रहता है? इसे तो निकालना रहता है ना, ये तो निकालना सिखा दिया ना आपको, फोरकास्टेड पीएनएल बनाया तो है आप लोगों ने। तो फोरकास्टेड पीएनएल में एबिटा नहीं है फोरकास्टेड के, हाँ सर, हाँ हाँ तो वही नंबर है ये। हाँ। एनी अदर डाउट एक्सेप्ट दैट फर्स्ट क्वेश्चन जो दीपक ने बताया उसको पाक किया हुआ है। बिफोर आई गो टू डाउट, बिफोर आई गो टू दैट, एनी क्वेश्चन इन दिस? Okay, so in case no, so let's go to that question now, that from where we get this enterprise value upon EBITDA. A couple of things. This enterprise value upon EBITDA. So इसके लिए मुझे दो वैल्यूज चाहिए, 2020 की जो चला गया साल, या 2019 की, या 2018 की। जितने साल का लोगे उतना अच्छा है, बिकॉज आपको एवरेज करने में आसानी होती है। मुझे दो नंबर्स चाहिए, एबिटा चाहिए इस साल का, और मुझे उस साल की एंटरप्राइज वैल्यू चाहिए। बाकी तो काम रेशियो कर देगा डिवाइड करके।
दीपक ये फर्स्ट तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पिछले किसी भी साल का एबिटा पीएनएल में रेडीली अवेलेबल होता है, Yes. ठीक है। किसी और को कोई डाउट तो एबिटा मिल जाएगा जो भी साल आप चूज करते हैं, 2020, 19, व्हाटएवर। नाउ एंटरप्राइज वैल्यू, ठीक है। सो एंटरप्राइज वैल्यू पहले तो और सिंपल, चलो बता देंगे, फिर कॉम्प्लिकेटेड से क्यों जाना है, पहले आपको सिंपल। ये नंबर हर कंपनी के एनुअल रिपोर्ट में गिवन होता है, पास्ट ईयर का 2020 का गिवन होगा, 2019 गिवन, 2018 का गिवन होगा, तो ये आपको गिवन होता है। आपको 99.99% प्रैक्टिकली कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, बट लेट्स फॉर द सेक ऑफ थ्योरेटिकल डिस्कशन, और लेट्स अज्यूम कभी नहीं गिवन है तो कैसे करते हैं मैं वो भी सिखाता हूँ। तो एबिटा तो हमें मिल ही जाएगा। अब एंटरप्राइज वैल्यू कैसे निकालते हैं? एंटरप्राइज वैल्यू का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो वो फॉर्मूला क्या होता है? उसका मार्केट कैप प्लस नेट डेट माइनस कैश, और कैश इक्विवेलेंट्स कर देते हैं इसको। ये फॉर्मूला होता है। अरे सर, ये प्रेफरेंस और माइनॉरिटी इंटरेस्ट भी तो होगा इसमें। वो सब उसमें आ गया। हाँ, प्रेफरेंस शेयर मैंने नहीं डाला, इसमें प्रेफरेंस शेयर नहीं है। अगर प्रेफरेंस शेयर है, माइनॉरिटी तो मार्केट कैप में आ गया ना, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट मार्केट कैप में आ गया फजलूल, ओ, ओके ठीक ओके। है। जो बुक में लिखा हुआ फॉर्मूला है वो रटने से काम नहीं चलेगा। ये अज्यूमिंग मार्केट है के प्रेफरेंस। मार्केट कैप के अलावा इसमें को दे रखा था। हाँ, तभी तो मैंने बोला उसको थोड़ा समझने की कोशिश करो। अज्यूमिंग नो प्रेफरेंस शेयर, जो आपके बुक्स में है, बुक्स में माइनॉरिटी को अलग से दे रखा है। तो अगर माइनॉरिटी को मार्केट कैप में इंक्लूडेड नहीं है तो अलग से लेना पड़ेगा, अगर मार्केट कैप में इंक्लूडेड है तो अलग से मैं नहीं लूंगा। ऐसे ही पता कैसे चलेगा कि मार्केट कैप में इंक्लूड है या नहीं? क्योंकि मार्केट कैपिटलाइजेशन का तो फॉर्मूला कुछ और ही हो जाता है। अच्छा, मार्केट कैप का क्या फॉर्मूला होता है? मार्केट प्राइस ऑफ शेयर मल्टीप्लाई नंबर ऑफ स्टैंडिंग शेयर्स। अच्छा, और माइनॉरिटी शेयर नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर में नहीं आते? नहीं आते? टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स हो जाएगा। यस सर, यस सर। क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो? मतलब फजूल आप खुद। अब वो हाँ अब सर। आप जिस स्टेज पे प्रोग्राम के हो, अब अगर ऐसे ऐसी गलती को भी आप नहीं पकड़ सकते जो बुक में लिखी हुई है, तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू सी कि देन देन आप वो डिफिकल्ट पोजीशन में हो जाए। यस। अब आप उस आपको उस उतना हो जाना चाहिए कि जो गलती है कहीं पे लिखी हुई, या कोई बोल रहा है, या कुछ भी गलत अगर है, तो आप उसको पकड़ सको, एटलीस्ट ये बेसिक वाली गलती। अगर आप खुद ही बोल रहे हो मार्केट कैप इज इक्वल टू नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स इनटू प्राइस, तो माइनॉरिटी शेयर नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स में इंक्लूडेड नहीं होते हैं क्या? होता है सर, होता है। तो फिर दोबारा से करने की क्या जरूरत है मुझे? एंटरप्राइज वैल्यू में किसी को डाउट? अगर प्रेफरेंस शेयर है तो प्रेफरेंस शेयर की भी वैल्यू ऐड कर दीजिए, अगर प्रेफरेंस शेयर नहीं है तो नहीं ऐड करिए। एक चीज और बताता हूँ, नेट डेट को थोड़ा सा क्लियरिफाई कर देता हूँ। नेट डेट का मतलब क्या है? नेट डेट का मतलब है लोन रीपेमेंट लोन ओल्ड लोन माइनस रीपेमेंट, यानी नेट का मतलब है जितना रीपेमेंट कर दिया है उसको माइनस करने के बाद। तो मैंने अगर 10 रुपए का लोन लिया है और 2 रुपए का रीपेमेंट कर दिया है तो 8 रुपए इज नेट डेट। तो ये एंटरप्राइज वैल्यू का फॉर्मूला होता है, ठीक है। 99% आपको जरूरत नहीं पड़ेगी एंटरप्राइज वैल्यू को बेटा निकालने की, बिकॉज वो गिवन होता है। आप अगर आपने अपनी कंपनी सिलेक्ट कर ली है तो आप उस कंपनी में जाकर देखते हैं रिपोर्ट पे, तो आपको मिलेगा ये।
मान लो रेयरेस्ट ऑफ रेयर स्टार्स वहां पे नहीं है, तो एबिटा आपको पीएनएल से मिलेगा। एंटरप्राइज वैल्यू का मैंने फॉर्मूला बता दिया है, ठीक है। इस फॉर्मूले में जो भी वैल्यू है सब आपको रेडीली मिल जाएगी। मार्केट कैप के लिए आपको दो चीजें चाहिए, नंबर ऑफ शेयर्स आपके पीएनएल सॉरी आपकी बैलेंस शीट में मिल जाएगा। उसका प्राइस अगर आप 2020 का ले रहे हो तो 2020 का एंड प्राइस स्टॉक मार्केट से मिल जाएगा, मल्टीप्लाई करो मार्केट कैप आ गया। आपको नेट डेट बैलेंस शीट से मिल जाएगा, कैश इक्विवेलेंट बैलेंस शीट से मिल जाएंगे। ये फॉर्मूला लगाओ, एंटरप्राइज वैल्यू आ जाएगा। एंटरप्राइज वैल्यू डिवाइडेड बाय एबिटा करोगे, एंटरप्राइज वैल्यू अपॉन एबिटा आ जाएगा। 3 साल का 4 साल का निकाल लो, 2020 2019 2018 उनका एवरेज कर दो। आगे आपके पास लास्ट 4 साल का या 5 साल का एवरेज एंटरप्राइज वैल्यू एबिटा, वो नंबर होगा जो 5/1 से हमने कैलकुलेशन स्टार्ट किया। दीपक कोई डाउट है तो पूछो। ये तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर है, ये कहाँ से आया? Okay, well, I'll see that for NTPC that whether it has been Sure. given or ठीक है, तो गिवन नहीं भी है तो भी मैंने कैलकुलेट करना सिखा दिया, आप उससे निकाल सकते हैं। एनीबडी एल्स, एनी अदर डाउट इन दिस? ठीक है, कूल। सो दिस कंप्लीट्स। हेलो हाँ जी। सर, ये मार्केट कैप में माइनॉरिटी इंटरेस्ट किस किस में इंक्लूड नहीं रहता? यार जब आपका नंबर ऑफ शेयर्स जो आप ले रहे हो मार्केट कैप के लिए, अगर उसमें माइनॉरिटी शेयर्स को अलग से नहीं ले रहे, माइनॉरिटी शेयर्स को हटा दो, तो आपको बाद में ऐड करने की जरूरत है। अगर ऑलरेडी इंक्लूडेड है तो ऐड करने की जरूरत नहीं है। आप कहाँ अटके हुए हो? नहीं सर, नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स तो ये इसमें एनुअल रिपोर्ट के फर्स्ट पेज में ही रहता है, तो उसे तो उसमें लेकर माइनॉरिटी होता है कि नहीं होता? होता है। तो फिर तो ये मैं ये क्वेश्चन का रेलेवेंस ही नहीं हुआ ना फजलूर। आपको जब भी नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स गिवन होता है उसमें इंक्लूडेड होता है। ओके सर, अगर वहां पे ऐसा लिखा हुआ हो, नंबर आउटस्टैंडिंग डज नॉट इंक्लूड माइनॉरिटी इंटरेस्ट, अगर ऐसा लिखा हुआ हो तब मुझे माइनॉरिटी को अलग से ऐड करना पड़ेगा। तो ये चीज वहां पर ही मेंशन रहता है कि अगर ये इंक्लूडेड नहीं है माइनॉरिटी इंटरेस्ट। अरे अगर एक जगह ऐसा लिखा हुआ है कंपनी के नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर इज 100, व्हाट डज दैट मीन फजलूर? कि कंपनी का माइनॉरिटी इंटरेस्ट भी उसमें इंक्लूड है। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब यही है ना कि उसके अंदर इंक्लूडेड है। अगर वो एक्सक्लूड करेगा तो लिख के देगा ना कि एक्सक्लूड कर रहा है, यस सर। बस। बाय डिफॉल्ट अगर नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर लिखा हुआ था उसका मतलब ये है कि उसके अंदर इंक्लूडेड है। ओके सर, ओके। जो फॉर्मूला बुक में लिखा हुआ उससे परेशान मत हो। नहीं सर, वॉलमार्ट का भी वैल्यू इसी तरीके से कर रखा है, इसी वजह हाँ से। क्योंकि अरे वो इसलिए वैसे कर रखा होता है क्योंकि वो मार्केट कैप में माइनॉरिटी शेयर्स को इंक्लूड नहीं करते हैं। छोड़ो, चलो मैं आपको वही लिख के देता हूँ, आपको फिर उससे आसान पड़ेगा। ये लो, ठीक है। और मैं यहाँ पे मार्केट कैप में स्टार लगा देता हूँ। बस ये चाहिए था आपको, ये लिख दिया मैंने। ये मिलेगा आपको, ऐसा लिखा हुआ है वहां पे। और वो लोग क्यों अलग से दिखाते हैं उसका भी रीजन समझ लो। वो इसलिए अलग से दिखाते हैं क्योंकि उनको माइनॉरिटी इंटरेस्ट की वैल्यू अलग से देखनी होती है। चलिए, और कोई डाउट एंटरप्राइज वैल्यू पॉइंट बेटा में? मैं गलती मत कर देना कि 2 बार ऐड कर दो। व्हाट आई मीन कि माइनॉरिटी कैप में भी इंक्लूड कर दो, पहले से इंक्लूडेड हो, और फिर से माइनॉरिटी ऐड कर दो। वो मत कर देना, वो डबल काउंटिंग हो जाएगी। नॉर्मली हम उसमें इंक्लूडेड ही रहता है।
इसलिए तो वो फार्मूला इंक्लूड लिखा था, इसलिए तो फजलूल पहले मैंने वो फार्मूला लिखा था। आप उस मामले में फिर आप थोड़े सा अनकंफर्टेबल फील हो रहे थे, इसलिए मैंने ये लिखा। अब आप फिर बोल रहे हो वो इंक्लूडेड रहता है, तो मैंने दोनों बता दिए, जो आपको कंफर्टेबल लगे वो ले लो, मैंने दोनों बता दिए। बट ये ध्यान रखना है मॉनेटरी इंटरेस्ट 2 बार काउंट नहीं हो जाए, कोई भी फॉर्मूला लो एक ही बार काउंट करना है। हाँ जी फजूल, कोई और डाउट है इसमें? नहीं सर। ठीक है, किसी और को कोई डाउट? ठीक है, सो दिस कंप्लीट्स योर मार्केट अप्रोच। सो हमने 3 अप्रोच से स्टार्ट किया। सो इनकम और मार्केट हमारी खत्म हो गई है। इनकम में मैंने आपको आई थिंक 6 या 7 मॉडल कराए हैं, मार्केट में मैंने आपको 3 मॉडल कराए हैं। इनकम में भी हमने किया कि फर्म की वैल्यू कैसे निकलती है और इक्विटी की वैल्यू कैसे निकलती है। मार्केट में भी हमने फर्म की वैल्यू कैसे निकलती है, इक्विटी की वैल्यू कैसे करती है, वो भी करा। सो एनी डाउट इन इनकम वैल्यूएशन मॉडल और मार्केट वैल्यूएशन मॉडल? और सर ये जस्टिफाइड और ट्रेलिंग पी रेशो क्या होता है? सॉरी, जस्टिफाइड एंड ट्रेलिंग पी रेशो। जो भी किया हमने, जो आप पूछ, ट्रेलिंग का मतलब क्या है, मैंने हटा के ट्रेडिंग कर दिया था। ट्रेलिंग का मतलब होता है कि मैं कहता हूँ 5x, विच मीन्स एक स्टॉक इज ट्रेलिंग एट अ मल्टीपल ऑफ 5x। और जब जस्टिफाइड ट्रेलिंग बोलते हैं, विच मीन्स उसको मार्केट ने एक्सेप्ट कर दिया, मार्केट ने जस्टिफाई कर दिया। लास्ट टाइम एनी डाउट इन इनकम एंड मार्केट अप्रोच? ठीक है, आई टेक दैट एज नो क्वेश्चंस। सो दिस मीन्स वी आर डन विद इनकम अप्रोच एंड वी आर डन विद मार्केट अप्रोच। कॉस्ट अप्रोच बचा है, ठीक है, बट वो प्रैक्टिकली इतना यूज नहीं है, बट फिर भी हम लोग करेंगे। जो मेन आपका फोकस है फ्रॉम ए प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव, ये 2 अप्रोचेस में यूज होता है, ठीक है। बट हम कॉस्ट अप्रोच भी कर लेंगे, बिकॉज वो अगर आपके थ्योरेटिकल सिलेबस में तो करना वो पड़ेगा हमें, ठीक है, बट इतना यूज नहीं होता है इंडस्ट्री में, ठीक है। बट हाँ, कॉस्ट अप्रोच करके ये हमारा पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो आपका मॉडल है, जो हमने फोरकास्ट किया था, हम उस पर वापस जाएंगे, क्योंकि हमारा सारा वैल्यूएशन हम सीख चुके होंगे। और फिर हम उस मॉडल की जो हमने फोरकास्टिंग करके छोड़ा है, आपके बैच में कौन सा वाला कराया था मैंने, if someone can help me to recollect? We are preparing a bridge, a toll road. टोल रोड, अच्छा, वो स्टार्टअप वाला कराया है क्या आपके Startup. बैच में मैंने? ठीक है, ठीक है, Yes. ठीक है। तो अभी जब ये हमारा वैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट हो जाएगा, जो हो गया है, थोड़ा सा सिर्फ एक कॉस्ट का कराना है, तो वो करके फिर हम उस मॉडल में वापस जाएंगे और उसमें सारा वैल्यूएशन जो हमारा बाकी है उसका पार्ट हम कंप्लीट करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में जब भी हो, आप लोग अपना लैपटॉप से लॉग इन करना, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम शायद स्टार्ट कर दें। कैलकुलेशन डिपेंड करता है कॉस्ट अप्रोच में कितना टाइम लगेगा, बट बहुत लाइकली है शायद स्टार्ट हो जाए। तो आप वो लैपटॉप के थ्रू लॉग इन करना, और उस लैपटॉप में वो एक्सेल शीट होना चाहिए जो एक्सेल शीट में हमने फोरकास्टिंग करके छोड़ा था, क्योंकि उसी में आगे हम अब वैल्यूएशन ऐड करना शुरू करेंगे, ठीक है। सो दैट इज व्हाट यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द नेक्स्ट क्लास।
अनदर पीस ऑफ एडवाइस कि नेक्स्ट क्लास से पहले उस मॉडल को रिवाइज कर लेना, क्योंकि थोड़ा टाइम हो गया, आई थिंक 2 या 3 वीक हो गए हैं शायद जब हमने उसको छोड़ा था। हमने उसको एक पार्ट कंप्लीट करके हमने उसको पार्क किया था, एंड देन वी स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग द वैल्यूएशन कॉन्सेप्ट्स। सो इट्स पॉसिबल कि जब हम दोबारा डिस्कस करना स्टार्ट करें तो मैं पीछे नहीं जाऊंगा, उस पर आगे का वैल्यूएशन ऐड करूंगा। तो गिवन थोड़ा टाइम होगा, आप एक बार उसको ब्रश अप कर लेना, सो दैट यू are able to remember what we discussed and what you've done so far. ठीक है? Any other question before we close? सर ये एच मॉडल कहाँ हुआ है? एच मॉडल 2 स्टेज मॉडल, इसका थोड़ा सा ये कर देना। 2 स्टेज मॉडल हो चुका है, एच मॉडल अभी बाकी है। 2 स्टेज 3 स्टेज मॉडल हमने किया नहीं है। 2 फेज मॉडल, फेज करके बोला मैंने, फेज बोला, स्टेज वर्ड यूज नहीं किया। फेज 2 फेज 3 फेज हमने नहीं किया क्या फिर? यस सर। हाँ, तो वही तो सब एच बाकी है। तो वो ये बाद में होगा। हाँ हाँ, बचा बोला ना, अभी थोड़ा सा बचा कॉस्ट वाला। ओके। और सर ये जो वैक वाला जो था, वैक कराया तो आपको? कि वैक में हम जो वेट ऑफ डेट या वेट ऑफ इक्विटी जो लेते हैं वो वो भी मार्केट वैल्यू पर होगा या? करेक्ट, ये भी हो जाएगा अभी। सो आपका एच और ये कॉस्ट, जो बचा हुआ पीस है ये इस पे आ जाएगा अभी, जो भी आपका एक पार्ट बाकी है। और बोलो। नथिंग सर। ठीक है फिर। थैंक्स एवरीवन, विल कनेक्ट इन द नेक्स्ट क्लास। बाय।